Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So after budget, now what is the view on interest rate scenario in coming days? I have already posted some videos a few days ago, and now there is some shift due to this budget. So we will discuss what is the view of different experts and what can be the likely scenario keeping in view the budget proposals. Now, some of the experts feel that interest rates may fall. This is their opinion based on the fact that government borrowing is projected lower as anticipated in past, and budget deficit projected is also lower. That is their assumption, that since there will be less pressure on borrowing as they were thinking earlier, this may lead to some fall in interest rates. This is one premises, keeping in view the demand and supply. But on the other side, there are some contradictory signals that we should also understand and keep in mind while projecting what will be the interest rates. At present, liquidity continue to be deficit, as banks are not having surplus liquidity as on date. Last year, banks were having surplus liquidity. So whatever borrowing program came from the government, it was easily absorbed. But this year, banks are already running into deficit. So they are short of funds. Once they are short of funds, that will tend them to raise interest rate to attract the deposits. So these are two contradictory signals. They require less money to participate in auctions that is required by the government, that is assumption. But at the same time, whether the real interest rates will fall will depend whether banks are having surplus money or shortage of money. Since banks are still running short of money, so there may be a competition when one bank raises the interest rate and other has to follow to attract that deposit. So the direction of the interest rate cannot be concluded either way. As a candidate, I should discuss both the things if this question is asked in interview. So these two contradictory signals will continue to confuse banks for some time till a equilibrium sets in, when the deposit growth is higher than credit growth and liquidity converts into surplus from the deficit. Till such time, this contradictory signal will be there. Some people will say interest rates will fall, some people will say interest rate may rise, or some people may say interest rate may remain stable. So also there are some other temporary factors like Red Sea crisis that we discuss, that is likely to push the prices of various commodities in coming days, because now imports are happening from a longer route. So freight charges are already gone up, and how this will pan out in coming days we will come to know, because this has happened in the month of January and those consignments are yet to come at our ports, and the final pricing will be decided in the month of February, March onwards. So if the prices of goods goes up, inflation start again picking up, then RBI may not like to reduce the interest rates. In that scenario, despite low requirement of government borrowing or lower projected GDP, still interest rate may go up. So these conflicting signals will continue. The real scenario will emerge when some time has passed. But immediate reaction to the budget is that interest rates may fall. So you should cover both the things in your answer to have a comprehensive answer. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। भारत में इंटरेस्ट रेट का क्या सिनेरियो रहेगा बजट के परिप्रेक्ष्य में, ये हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में चर्चा की थी कुछ दिन पहले, वो बजट से पहले की थी। अब बजट आ गया, बजट आने के बाद कुछ सिनेरियो चेंज है और कुछ एक्सपर्ट ने अपना व्यू भी बदला है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है आने वाले दिनों में गिरने शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बोरिंग प्रोजेक्ट की है, ग्रॉस बोरिंग, वो लोअर है दैन जो लोग सोच रहे थे। इसी तरह से जो बजट डिफिसिट प्रोजेक्ट किया है जीडीपी के मुकाबले,
वो भी लोअर प्रोजेक्ट किया है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगी बॉन्ड मार्केट पे। तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर इंटरेस्ट रेट गिरें। ये एक सिनेरियो है, मगर इसका कंट्राडिक्टरी सिनेरियो भी सामने खड़ा है। कंट्राडिक्टरी सिनेरियो ये है कि बैंक्स आर शॉर्ट ऑफ फंड्स। आज भी अगर हम देखें तो 2,21,000 करोड़ के करीब बैंक्स ने बारो किया हुआ है आरबीआई से। पिछले साल इन्हीं दिनों में सरप्लस था बैंकिंग के पास लिक्विडिटी, अब शॉर्टेज है। तो अगर बैंकों के पास शॉर्टेज है तो नेचुरल है, अगर उनको लैंड करना है तो उनको डिपॉजिट अट्रैक्ट करना होगा। अगर उनको डिपॉजिट अट्रैक्ट करना है और प्रेजेंट रेट पे नहीं मिल रहा है तो ये उनको फोर्स करेगा कि इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाए। और मान लो एक भी बैंक बढ़ा देता है इंटरेस्ट रेट तो बाकियों को compete करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ जो कंट्राडिक्टरी सिग्नल है कि जो लिक्विडिटी क्योंकि शॉर्ट है, डिफिशिट है, तो ये इंटरेस्ट रेट को हमेशा ऊपर की तरफ ले जाने की तरफ टेंडेंसी रखेगा। जबकि दूसरी तरफ जो बोरिंग है, जो बॉन्ड मार्केट है, अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट कम हो जाती है फंड्स की तो वहाँ से सिग्नल आएगा कि बॉन्ड प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई और यील्ड गिरनी शुरू हो गई। तो ये कंट्राडिक्शन अल्टीमेटली कैसे पैन आउट होता है ये वक्त ही बताएगा। पर अभी कोई भी सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि इंटरेस्ट रेट गिरने ही शुरू हो जाएंगे या इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ही या इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहेंगे। तो एज ए कैंडिडेट मुझे दोनों व्यूज़ अपने आंसर में लेने चाहिए अगर मेरे से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बजट के अकॉर्डिंगली ये माना जा रहा है इंटरेस्ट रेट में फॉल वो इस कारण से है और इंटरेस्ट रेट में राइज वो इस कारण से है क्योंकि डिफिसिट चल रहा है अभी लिक्विडिटी का। तो लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए हो सकता है बैंक मजबूर हों कि उनको हायर इंटरेस्ट पे करना पड़े। इसके अलावा जो एक टेम्परेरी क्राइसिस, रेड सी क्राइसिस है, वो भी अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है क्योंकि अभी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो लंबे रूट से हो रहा है। तो फ्रेट रेट चार्जेस बढ़ गए हैं। अब जो पहली कंसाइनमेंट्स हैं वो आएंगी फरवरी के अंदर क्योंकि जनवरी से क्राइसिस शुरू हुआ है और 15 से 20 दिन का टाइम जो बढ़ना शुरू हुआ है वो जनवरी में बढ़ा है। तो जैसे ही वो कंसाइनमेंट्स लैंड करेंगी हमारे पोर्ट्स के ऊपर और वो जो कॉस्ट निकलेगी वो कंज्यूमर को पास ऑन होगी। अभी पुरानी इन्वेंट्री से ही मोस्टली कंपनीज चला रही हैं तो अभी उन्होंने एकदम किसी भी प्राइस को बढ़ाया नहीं है। पर जैसे जैसे जो नया इंपोर्ट आता जाएगा और कॉस्टली आता जाएगा तो वो भी कॉस्ट जरूर कंज्यूमर पे पास ऑन होगी। कितनी होगी ये टाइम बताएगा। तो वहाँ से इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना जाहिर की जा रही है और ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो अगर इन्फ्लेशन फिर बढ़नी शुरू हो जाती है तो हाई इन्फ्लेशन रेजीम के अंदर इंटरेस्ट रेट को नहीं गिराया जा सकता। तो इसलिए आरबीआई जो भी स्टैंड लेगी बहुत केयरफुल लेगी क्योंकि कंट्राडिक्टरी सिग्नल्स हैं। एक सिग्नल हमें बता रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिर सकते हैं, दूसरे फैक्टर्स हमें बता रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि फॉर सम टाइम अभी इंटरेस्ट रेट यहीं पे रुके रहें या यहाँ से बढ़ जाएं या थोड़े बहुत घट जाएं। मगर हमें इंटरव्यू आंसर के लिए दोनों बातों को डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि जब आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हो सकता है वन साइडेड स्टोरी हो और आपका आंसर पार्शियली करेक्ट हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।